ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 3واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودی ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اسے کہا کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جہاں پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں؟ پریز لارڈ۔ سارے ہی پکی گل ہے، آپ بھی چلیں، یہ تو خداوند کا شکر ہے کہ ہم سب کیا ہیں، ہم مسیح میں پیدا ہوئے ہیں یا ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں۔ یسوع مسیح کون تھے؟ ہیں کون تھے ڈیڈی؟ یسوع مسیح ہیں کون تھے؟ کسی کو نہیں پتہ، مانتے ہیں پتہ نہیں ہے کون تھے یسوع مسیح؟ کوئی بتائے گا؟ مریم آپ بتاؤ۔ ہاں جی، پریز دی لارڈ، خدا کا اکلوتا بیٹا، اکلوتا بیٹا۔ ہاللیلویا۔ یہاں پہ میں نے جو آج کلام مقدس میں سے تلاوت کی ہے، نیکودیمس جو ہے وہ ایک فریسی ہے، اور جو ہے فقیہ فریسی جیسے ہوتے تھے نا پہلے دور میں یہودیوں کے، جن کو جو ہے کہنے کے شرع کے عالم جو تھے، وہ ان میں سے ایک نیکودیمس جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اور وہ جو ہے کیا خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں، ہسٹری اگر ہم تھوڑی سی پڑھیں تو اس میں جو ہے فقیہ اور فریسی شرع کے عالم تھے، اور خدا یسوع مسیح بھی جو ہے انہی میں سے، یہودیوں میں سے ہی جو ہے وہ، کیونکہ مقدسہ مریم کے وہ بیٹے تھے، بے شک وہ خدا باپ کے بیٹے ہیں، لیکن زمینی طور پر جو ہے وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے جو ہے اپنے یعنی کہ باپ کے کلام کو جس طرح خدا کی طرف سے جیسے وہ آئے تھے وہی کلام جو ہے وہ ان کو سکھا رہے تھے۔ اب فقیہ فریسی جو ہیں، کیونکہ وہ شرع کے عالم ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان میں سے یہ ایک شخص جس کا نام نیکودیمس ہے، وہ یسوع مسیح کے ہونے کا یا مسیح ہونے کا یا ربی ہونے کا یا خدا کا بندہ ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن کہاں پہ؟ رات کے اندھیرے میں۔ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ کیونکہ وہ جو دوسرے فقیہ فریسی تھے جو شرع کے عالم تھے، ان سے کیا کرتا تھا؟ ڈرتا تھا، اسی لیے جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں آ کر خدا یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے کہ تو واقعی خدا کی طرف سے ہے، لیکن کیا ہے کہ اپنے دل میں جو ہے اس نے ایک ڈر بٹھایا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے فقیہ فریسی جو ہے اس بات پر ایمان لانے سے کہیں جو ہے ہیکل سے نکال نہ دیں یا جماعت میں سے نکال نہ دیں، اسی لیے جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کو ملتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کیا ہے کہ اس کو ایک سیدھا سادہ جواب دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا تب تک وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، کیا یسوع مسیح جو ہے وہ شریعت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے؟
खुदा यीशु मसीह के बारे में पिछले दौर में, पिछले अहदनामे में जितनी भी पेशन गोइयाँ हुई थी, उन सब को खुदा यीशु मसीह ने पूरा किया। एक एक पेशन गोई को जो है वो खुदा यीशु मसीह ने अपने किरदार से जो है उसको पूरा किया। इसका मतलब यह है कि खुदा यीशु मसीह शरीयत को ख़त्म करने नहीं बल्कि उसकी तकमील करने के लिए आए थे। इसीलिए जो है खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने भी मेरा इकरार करना है वो दिन के उजाले में करे। इसीलिए कहा गया है कि कोई दिया जलाकर जो है वो क्या कहते हैं कि मेज़ के नीचे या कहीं नीचे छुपा कर नहीं रखते, बल्कि उसको कहाँ रखते हैं, चिरागदान में रखते हैं, ताकि उसकी रोशनी सब तक पहुँचे। आज मैं भी खुदा यीशु मसीह का बंदा होकर, खुदा यीशु मसीह का शागिर्द होकर आप सबको जो है बहुत सारे लोगों के सामने जो है इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यीशु मसीह के वसीले से, उसके बेशकीमत खून से धुलकर जो है उसकी सलीबी मौत के वसीले से जो है मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे सारे गुनाह जो हैं उसके वसीले से धुल चुके हैं। अब मैं उसमें नया पैदा हो चुका हूँ। इसीलिए खुदा यीशु मसीह जो है निकोदेमुस को, जो शरअ का आलम था, उसको यही कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से जो है वो पैदा नहीं होता तब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये एक रूहानी तौर पर बात है कि अपनी सारी पुरानी चीज़ों को जो है वो निकाल कर फेंक देना है, क्योंकि शरीयत जो है हमें गुनाहगार ठहराती है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर जब हमारा ईमान आ जाता है तो फिर क्या है कि उसके बेशकीमत खून के वसीले से हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। हमारी सारी बदियां जो हैं हमारे अंदर से क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। अब हम नए सिरे से पैदा हो गए। अब जब खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया, उसने जो है हमें जो है वो ये इख्तियार दिया कि हमने उसको जो है वो कबूल किया, अपनी ज़ुबान से उसका इकरार किया। तो फिर क्या है कि हमने खुदा यीशु मसीह की तालीम पर अमल करना है। अगर हम खुदा यीशु मसीह की तालीम पर अमल नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम वही पुरानी शरीयत में जी रहे हैं, हम उसी ज़िंदगी में जी रहे हैं जो कि जैसे फकी फरीसी ज़िंदगी गुजारते थे। फकी फरीसी क्या करते थे, खुदा यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाते थे, जगह जगह पे उसको जो है उसको बुरा भला कहते थे, उसको तनकीद करते थे, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। तब कोई कहता था ये जो है वो क्या कहते हैं बुरे लोगों के साथ बैठकर खाता पीता है, ये महसूल लेने वालों के साथ बैठता है, ये पेटू है। इस तरह के और बहुत सारे इल्ज़ाम जो है खुदा यीशु मसीह पर कौन लगाते थे, फकी और फरीसी। और वो उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं रवशों में पड़े हुए थे, क्योंकि उनका ईमान जो है खुदा यीशु मसीह पर नहीं था। मेरे अजीज़ों, जब खुदा यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है तो फिर उसकी तालीम भी हमारे अंदर आ जाती है, उसका कलाम भी हमारे अंदर आ जाता है, और कलाम ही जो है हमें अंदर से धोकर नया कर देता है। वो सारी पुरानी चीज़ों को जो है हमारे अंदर से निकाल देता है। जैसे कि सऊल जो था बाद में जो क्या पौलुस बना, क्या करता था वो भी जो है शरअ का आलम था, वो भी आला दर्जे का फरीसी था, वो भी जो है क्या करते हैं कि मसीहों को सताता था। लेकिन एक दिन जब खुदा यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आते हैं तो क्या होता है कि उसकी सारी ज़िंदगी बदल जाती है, और वो अपनी सारी ज़िंदगी को जो है खुदा यीशु मसीह के लिए मखसूस कर देता है। वो जो मसीहों को सताता था, उनसे लड़ता था, झगड़ता था, उनको अज़ियतें देता था, वो आज जब खुदा यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आए तो क्या हुआ कि वो नया बन गया, वो नए सिरे से पैदा हो गया। उसके अंदर से वो सारी तमाम पुरानी खसलें से जो थी वो निकल गई, और वो नए तरीके से जो है जो खुदा यीशु मसीह की तालीम थी उसके मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारने लग गया। आज आसानी के तौर पर जो है एक आसान लफ्ज़ों में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर हम उसी पुरानी इंसानियत में जी रहे हैं, जैसे कि मैं पहले गालियाँ देता था, मैं बहुत मगरूर था,
मैं लड़ता था, मैं झगड़ता था, मैं बुराइयां करता था, मैं दूसरों पर नज़र रखता था, मैं उनके अंदर कीड़े निकालता था। मैं अगर कोई मेरे साथ कोई छोटी सी बात कर देता था तो मैं उसके पीछे पड़ जाता था, बल्कि उसको मारने पर आ जाता था। लेकिन आज क्या है कि आज जब मैं खुदा यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा हो गया हूँ, तो फिर मेरे अंदर से वो सारी चीज़ें जो है वो निकल गई हैं। खुदा यीशु मसीह का कलाम मुझे क्या करता है, उन सारी चीज़ों से मना करता है। इसलिए जो है, अगर आप खुदा यीशु मसीह के बेटे और बेटियां या उसके शागिर्द हैं, तो फिर हमने एक दूसरे को जो है बेइल्ज़ाम ठहराना है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, क्योंकि वो बदन है और हम उसके क्या हैं, अज़ा हैं। तो अज़ा अगर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? कैंसर कैसे बनता है? किसी इंसान को जब कैंसर होता है तो फिर कहाँ से वो कैंसर बनता है? उसके अपने ही अंदर के अज़ा जो है वो जिस्म के ख़िलाफ़ जो है वो क्या काम करना शुरू कर देते हैं। तभी जो है वो इंसान के अंदर जो है वो कैंसर पैदा होता है। क्या हम यीशु मसीह के बदन में जो है उसके कैंसर की तरह हैं? अगर जो है हम बदन के ख़िलाफ़ ही लड़ रहे हैं, कोई बाहर से बंदा आकर हमें ये देखता है कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हम धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ किस्म के गुनाहों में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने बदन के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर रहे हैं। और वो बदन क्या है? वो खुदा यीशु मसीह बदन है और हम उसके क्या हैं? हम उसके अज़ा हैं। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है? उसने कहा, मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम मेरी क्या हो? डालियाँ हो। और जो डाली फल नहीं लाती वो क्या कहती है? काटी और आग में डाली जाती है। क्या हम जो है खुदा यीशु मसीह को कबूल करके भी आग के वारिस हैं? तो फिर जो है हमारा आपस में जो है वो लड़ना झगड़ना, हमारा एक दूसरे को बुरा भला कहना, हमें जो है हमारा आपस में लड़ाई झगड़ा करना या एक दूसरे के खिलाफ हो जाना जो है, क्या ये दरख्त को जो है वो फलदार बना रहा है, या फिर उस दरख्त में से हम जो डालियाँ उसकी निकली हैं उसको जो है हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको बेफल बना रहे हैं। जब डालियाँ किसी दरख्त की कट जाएंगी तो वो बेफल हो जाएगा। खुदा यीशु मसीह को जो है हमारे इस किरदार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जो है बाप के दाहिने हाथ पर बैठा है, उसने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। उसने सलीब पर चढ़कर क्या कर दिया कि तमाम हुआ, उसने तकमील कर दी है। जो नबूवतें उसके बारे में हुई थी उसने उस नबूवतों को पूरा करके तकमील कर दी। उसने सलीब पर चढ़कर इसलिए कहा कि तमाम हुआ। अब अगर हम फिर भी जो है पुरानी इंसानियत में जी रहे हैं, नए सिरे से पैदा नहीं हुए, उन पुरानी रविशों को हमने नहीं छोड़ा, वो गाली गलौज नहीं छोड़ा, वो लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ा, वो चोरी नहीं छोड़ी, वो बदी नहीं छोड़ी, वो शराब नोशी नहीं छोड़ी, तो इसका मतलब क्या है कि हम यीशु मसीह के शागिर्द नहीं हैं। इसीलिए जो है वो खुदा यीशु मसीह निकोदेमुस को कहते हैं कि तू रात के अंधेरे में मुझे जो है ये बात कह रहा है, मेरा इकरार कर रहा है, लेकिन क्या तू अंधेरे में उजाले में भी मेरा इकरार करेगा? क्या तू नए सिरे से पैदा होगा? वो तमाम पुरानी तालीम को तू तर्क कर देगा और जो मैं तुझे जो है सिखा रहा हूँ, जो तकमील का कलाम सुना रहा हूँ, उसको तू कबूल करेगा? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा रास्ता तंग रास्ता है। इस दुनिया, इस जहान के काम काज जो है लोग जो है हमें मजबूर करेंगे। इब्लीस जो है हमें बार बार उसी इंसानियत पर लेकर जाएगा, कहेगा कि इन्हें तेन गाल कड्डी किमें कढ़ के चला गया भाई, ये तो अभी बच के नहीं जा सकता, तू इससे बदला ले। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह की तालीम क्या कहती है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। अपने दुश्मनों के लिए क्या करो? दुआ करो। और मेरे अजीज़ों, वाकई ही
दुआ के अंदर जो है इतनी ताकत है। खुदा का रूह जब आप दुआ करते हैं तो उस गुस्से पर, उस गाली गलौज पर खुदा का रूह जो है आपको क़ुव्वत बख्श देता है। जब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो फिर जैसे निकोदेमस ने कहा कि तू वाकई खुदा का बंदा है, खुदा की तरफ से है, तभी तेरे हाथों से ये मौजज़ात होते हैं। क्यों जो है वो खुदा के लोग जो हैं वो हाथ रखते हैं और मौजे होते हैं, लोगों की ज़िंदगियां बदलती हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। वजह यही है कि जो कोई भी खुदा में यीशु मसीह को जो है वो नए सिरे से कबूल करता है, नए सिरे से पैदा हो जाता है, उसके अंदर से ऑटोमेटिकली खुदा में यीशु मसीह की क़ुव्वत और ताकत, रूह कुदूस की क़ुव्वत और ताकत से वो सारी बदियां और बुराइयां निकल जाती हैं। इब्लीस जो है वो हर वक्त आपको सताता है, इब्लीस हर वक्त आपको उकसाता है कि नहीं भी बदला ले, नहीं भी गाल काट, नहीं भी चोरी कर, वो कोई नहीं, आज पीला खैर है। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो खुदा यीशु मसीह में नए सिरे से पैदा होता है, अपनी बुराइयों, अपनी तमाम किस्म की पुरानी इंसानियत को निकाल फेंकता है, वो क्या है कि खुदा की बादशाही के लायक ठहरता है। इसीलिए जो है निकोदेमस जो शरह का आलम था, उसको खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता तब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आज हमने क्या करना है? हमने पुरानी इंसानियत को उतार डालना है। जब कैसे हम जो है बाहर से आते हैं पसीने से भीगे हुए, गंदगी से भरे हुए जो है घर में आते हैं, हमें चैन नहीं आता जब तक हम नहा धोकर कपड़े अपने चेंज नहीं कर लेते। इसी तरह जो है अपनी रूह की आपने फिक्र करनी है। इब्लीस आपको गुस्सा चढ़ा रहा है तो उसको जो है आपने झिड़कना है कि ऐ इब्लीस दूर हो जा, मैं यीशु का बेटा या बेटी हूँ, मैंने अब जो है किसी को गाली नहीं देनी, किसी से बदला नहीं लेना, किसी को जो है बुरा भला नहीं कहना, अब मैंने नशा नहीं करना, अब मैंने चोरी नहीं करनी, अब मैंने बदी नहीं करनी, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूँ और मैंने उसके कलाम पर अमल करना है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई का कलाम है। इसीलिए जो है खुदा यीशु मसीह ने कहा कि सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। सच्चाई, राह, हक और ज़िंदगी कौन है? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आता है तो मेरे अजीज़ों, ये सारी कमियां बेशियां हमारे ऊपर अय्यां हो जाती हैं। रूह कुदूस आपको बताने लग जाता है कि नहीं भाई, ये सीधा रास्ता है और ये उल्टा रास्ता है, ये हम हमेशा की मौत की तरफ लेकर जाएगा और ये हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएगा। यही यीशु मसीह की कुदरत है। कलाम मुक़द्दस कहता है कि खुदा यीशु मसीह को खुदा बाप की तरफ से कुदरत की ऐसी क़ुव्वत मिली है जिससे हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। और मेरा ईमान है कि आज से ही आप अपनी ज़ुबान से इकरार करेंगे कि खुदावंद मेरी सारी पुरानी इंसानियत को मुझसे उतार डाल। मैं उनको जो है उनसे नफ़रत करता हूँ, मैं गाली गलौज से नफ़रत करता हूँ, मैं लड़ाई झगड़े से नफ़रत करता हूँ, मैं धोखाधड़ी से नफ़रत करता हूँ, मैं झूठ बोलने से नफ़रत करता हूँ, क्योंकि राह, हक और ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह है और वही जो है मेरा खुदा है। मैंने आज से उसको जो है अपनी ज़िंदगी में ले लिया। अब कोई भी इब्लीसी काम जो है, इब्लीसी पहरा जो है मुझ पर टिक नहीं सकता। मेरे से ही इकरार करना है, अपनी पुरानी इंसानियत को जो है क्या करना है? निकाल फेंकना है। मैं कहता हूँ कि आप ऐसे सारे जो है यहाँ पे खड़ा होकर कलाम सुना सकते हैं। अब मेरे सारे जो है अगर दुआ करेंगे तो मौजे होंगे। मेरा ईमान है, क्योंकि जो कोई दुआ यीशु मसीह के नाम से की जाती है वो हर हालत में पूरी होती है। पुरानी इंसानियत जाती रहती है, पुरानी इंसानियत का किसी किस्म का कोई हमारी ज़िंदगी में काम नहीं है। फिर यही गवाही जो है हमारी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देने का बायस बनती है। हालेलुया, हालेलुया।
تو آج سے ہی تہیہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے فقی فریسی نہیں بنیں گے. ہم نے وہ پرانی تعلیم کو، پرانی انسانیت کو جو ہے، پرانی شریعت کو چھوڑ دیا. ہم تکمیل کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آمین. اب جو ہے برائی کی ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کا نام پاک ہے، اور جو جگہ اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے وہ بھی پاک ہے. جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے تب تک ہم اس خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اسی لیے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو نئے طریقے سے جو ہے وہ نیا کرنا ہے، خدا یسوع مسیح کو دینا ہے، تاکہ پرانی انسانیت اتر جائے اور نئی انسانیت ہماری زندگی میں بس جائے. آمین. آمین. کون کون جو ہے وہ آج خدا یسوع مسیح سے دعا کرے گا کہ میری پرانی انسانیت کو نکال، میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، میں گالیاں اونچا ہاتھ چپ چپ ٹھیک ہوتی مسطرح ہاتھ نہیں جب ابھی اندھیرے سے کھانا. سارے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں اونچا، دونوں ہاتھ کھڑے کریں، دونوں ہاتھ کھڑے کریں. مینو آنٹی رہے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، یہ مطلب اونچا. چلے اسی طرح جو ہاتھ کھڑے کرتے ہم اپنے آپ کو بند کریں گے اور ہم دعا کریں گے. میرے ساتھ بولیے گا،